everyone. Now in this session we are going to discuss about the post-fertilization event, and in post-fertilization event the first event would be the embryo development or development of embryo. Now how the zygote would form a further embryo, that we have to discuss here. So the structure of this one, this is the primary endosperm nucleus, that we have already seen. So here is a 3n and here is a 2n zygote, right? And this is our pen in the embryo sac. Now the zygote would form the embryogenesis, matlab formation of embryo, but how it is forming an embryo, that we have to learn today. So we'll understand this embryogenesis with the help of number of diagrams. Okay. So this zygote forms a wall around it, and this wall would converted into the oospore. ये oospore में convert होती है वो wall, and this oospore divides and form a two cell. ये दो cell form करती है. This is the embryonal cell जो कि नीचे वाले side पे है. This is the suspensor cell. Suspensor cell and embryonal cell. Now you have to understand this embryonal cell. This embryonal cell divides. These are the further stages of embryonal cell, because embryonal cell would divide in such a way that it would form an embryo at the end of this division. And suspensor cell, so suspensor cell को हम यहाँ black color से दिखा देते हैं, because यहाँ जो suspensor cells draw करी है, ये जो भी black color आप देख रहे हो, these are all suspensor cell, और जो blue यहाँ दिखाई दे रहा है वो embryo के cells है. So embryonal cell would divide in such a way that it would form a first globular embryo, and here suspensor cells divide itself into suspensor cell. This single suspensor cell divide itself into the octant stage. ये octant stage तक divide होता है 8, like see 1 2 3 4 5 6 7 8. So ये octant stage तक खुद को डिवाइड करता है और वहां स्टॉप हो जाता है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड ये सेल डिवीजन जो भी हो रहा है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस. सो ये सस्पेंसर सेल खुद को ऑक्टेंट तक डिवाइड करके, ये जो सस्पेंसर सेल है ये खुद को डिवाइड करके, ये डिवाइड होगी तो नीचे की एम्ब्रियोनल सेल भी डिवाइड होती है, सो दैट ये खुद को डिवाइड करके एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में पुश करता है, सो दैट उसको अच्छे से नरिशमेंट मिले. सो ये एम्ब्रियोनल सेल ऑल्सो डिवाइड्स इन सच वे दैट, पहले तो वो बहुत सारे मास में डिवाइड करेगी खुद को, एंड दिस इज कॉल्ड एज ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो. एक ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर बनाएगी, उसमें वो बहुत सारी सेल्स रैंडमली डिवाइड करेगी, और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो. दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. फिर ये ऑक्टम स्टेज है, ये भी उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर ही रहा है. सस्पेंसर सेल ऑल्सो प्रोवाइड द नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, लेकिन एम्ब्रियो भी खुद की सेल्स को डेवलप कर रहा है, एंड सस्पेंसर सेल ने उसको डीपली एंडोस्पर्म में पुश किया है बाय फॉर्मिंग ऑक्टेट, सो दैट उसको अच्छे से नरिशमेंट मिल सके. नेक्स्ट स्टेप वुड बी, जब ये मास ऑफ सेल बना लेगा तो इस मास ऑफ सेल को आगे शेप आना शुरू हो जाएगा, और जब वो शेप आना शुरू हो जाएगा तो वो कौन सा शेप होगा, दैट वुड बी दी heart shape embryo. The next step would be the heart shape embryo. Heart shape आ गया है because this is the development of dicot embryo. And now because it's a dicot, it should have a 2 cotyledon, right? So ये जो है ये heart shape embryo में आ चुका है, मतलब इसके अंदर भी cells ही होने वाली है अभी, जो मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं करी है, बट इसमें सेल रहेगी. And this is also the suspensor cell. ये उसके साथ वैसा ही रहेगा, उसको डीपली एंडोस्पर्म में पुश करके रखेगा एंड नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा. अगला है हॉर्सशू शेप. नाउ दिस इज लुकिंग लाइक अ हॉर्सशू शेप. इसके ये 2 कॉटिलिडॉन हैं, ये फर्दर ऐसे ग्रो हो चुके हैं, और ये 2 ग्रो होने के बाद दे हैव फॉर्म द रेडिकल एंड प्लूम्यूल. रेडिकल एंड प्लूम्यूल फॉर्म करेंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस के साथ रेडिकल एंड प्लूम्यूल फॉर्म करेंगे. सो आपको याद रखना है, दिस इज द रेडिकल एंड दिस वन इज अ प्लूम्यूल. Okay, this is a radical, this is a plumule. Radical would be responsible for the formation of root. ये क्या फॉर्म करेगा, root फॉर्म करेगा. And plumule would responsible for the formation of shoot. ठीक है. And here you have to observe 2 cotyledons. So this is the first cotyledon, this is the second cotyledon. So these are the cotyledons of the seed.
And on the basis of cotyledon we have divide cotyledons into monocot and dicot. इसका डिफरेंस भी आप देख सकते हो. डिफरेंस मेरे चैनल पे बिल्कुल रियल चीजें दिखा के, लाइक रियल लीफ, रियल स्टेम, रियल रूट दिखा के अच्छे से समझा के दिया है. So these are the two cotyledons. It means it's a dicot का embryo. So हमने शुरू किया था जाइगोट से, एम्ब्रियोनल सेल फॉर्म किया. एम्ब्रियोनल सेल ने पहले खुद को एक ग्लोब्यूलर मास में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसको उसने शेप देना शुरू कर दिया, सो दैट टू कॉटिलिडॉन अल्टीमेटली हमको मिले. एंड दिस इज द मैच्योर एम्ब्रियो. दिस इज द मैच्योर एम्ब्रियो. नाउ ये जो डायग्राम है यहाँ आप देख सकते हो, सस्पेंसर सेल का साइज भी छोटा हो रहा है. नाउ इवेंचुअली सस्पेंसर सेल डीजनरेट हो जाएंगे बिकॉज उनका अभी आफ्टर एम्ब्रियो फॉर्मेशन, आफ्टर मैच्योर एम्ब्रियो फॉर्मेशन कोई काम नहीं बचता है. दिस इज अ डायग्राम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 2019 में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा चुका था. तो वो क्वेश्चन कैसा है मैं अभी आपको समझा देती हूँ. सो जो क्वेश्चन पूछा था उसमें डायग्राम आपको प्रोवाइड किया था, और डायग्राम के साथ साथ यहाँ उसमें x, z, y, w ऐसे अल्फाबेट्स दिए थे और आपको रिस्पेक्टिव उनके लेबल्स फाइंड आउट करने थे. काफी इजी क्वेश्चन था. सो देखिए, इसीलिए मैंने डायग्राम वैसे ही ड्रॉ किया है. डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछने के चांसेस हो सकते हैं, इसमें ऑलरेडी पूछे भी जा चुके हैं. सो ये होगा प्लूम्यूल. प्लूम्यूल वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द शूट फॉर्मेशन. कॉटिलिडॉन, ये कॉटिलिडॉन्स है, नो डाउट. 1 + 1 2 2 मोनोकॉट, डाइकॉट है ये. 1 + 1 मतलब 2 डाइकॉट होगा. रेडिकल वुड बी Y एंड W वुड बी द सस्पेंसर सेल, जो कि डीजनरेटिंग सस्पेंसर सेल है. सो दिस इज हाउ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इन डाइकॉट. इफ इट इज अ मोनोकॉट, देन मोनोकॉट में एक ही कॉटिलिडॉन वहां होता, बट बिकॉज इट्स अ डाइकॉट सो इसमें 2 कॉटिलिडॉन है. नाउ अंडरस्टैंड दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करके रखिए. ये स्टेजेस का सीक्वेंस आपको पूछा जा सकता है. पहले ग्लोब्यूलर होती है, फिर हार्ट होती है, फिर हॉर्सशू शेप होती है. इसका और एक नाम है, ये आपको मैं होमवर्क दे दी हूँ. यू हैव टू फाइंड आउट द मैच्योर एम्ब्रियो का ऑल्टरनेटिव नेम. यहाँ मैंने हॉर्सशू लिखा है बिकॉज इट इज लुकिंग लाइक अ हॉर्सशू शेप, लेकिन आपको इसका ऑल्टरनेटिव नेम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर. अगेन ये डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में पूछा जा सकता है. अगर आप इसका डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं. सो यस, दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. I hope you have all understood the development of embryo. But still, if any doubt, you can let me know. See you in next session.